A very warm welcome to everyone to my channel SSB Let's Get Tree Coming. This being my third video. On first video, I have covered the 5-day process which is followed in defense, that is in Indian defense. Second was the stage 1 test, which is PP and DT. PP stands for picture perception and DT stands for discussion test. So today I'll be taking one story, and in that we will be writing two themes. And this is one of the most common story which I have seen across in all the SSB. So rather than wasting much of the time, let's get begin. Let's begin. So this is the picture which I have taken up because I have seen, uh, you know, in many of the SSB. So I'm taking this picture, and in this, as I've said, we'll be taking two themes. First theme is in the right hand corner. So first 30 seconds will be provided to you guys. So let's start it with Hindi. So हमें 30 seconds मिलते हैं to see this picture, analyze this picture. So what we see, this 30 seconds is the most critical and important thing. you know आपको mentally physically आप उस time पे आपको होना चाहिए वहां पर, और वो 30 seconds आपको, मतलब ये लगा लो 30 seconds आपकी लाइफ डिपेंड कर रही है. अगर आपने 30 seconds को अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो आप गो थ्रू कर लोगे, क्योंकि इस पिक्चर में ही सब कुछ डिस्क्रिप्शन है. सो व्हाट वी सी, अ मैन सिटिंग, ठीक है. Here some books, table and one scenery. An important thing, he's dressed up. वो पूरे सूट बूट में बैठा है. He's completely dressed up. Okay, and he's thinking of something. So that can be anything. So with this theme, I have written this theme, and theme 2 is written by one of my recommended friend. Then I'll tell you what's his name. So theme 1, as it says, so my writing is not that good, but I'll dictate it. So theme 1, Rakesh, 17 20 12 class student of Scholars Home, Dehradun, Uttarakhand, was having a board paper. It was month of February. Next month he was having exam. For the same, he discontinued all his social networking IDs, only active on WhatsApp to consult teacher and student. With his first paper on 1st March, he was changed, and it was of English paper, where he have prepared well, made notes, gone through previous year question papers, and the reporting time was 1:30. He got dressed up and was ready by 11 a.m. He sat on a chair, revised notes, relaxed and calmed down, took admit card, pen and stationery, took blessing of his parents, and went for paper. Paper went well, and his nervous tension was over once he overcome his first paper. With his regular practice and hard work, he scored 86 percentage and was happy. Okay. Continued his daily routine, which he followed across. With that, he successfully cleared NIT paper and took admission in NIT Kanpur, pursuing pursuing BTech in CS branch. Okay. So guys, ये जो मैंने स्टोरी लिखी है, ये मैंने 4 minutes 20 seconds में लिखी है. इसके आगे जो लिखना था, ही वॉज स्टिल परसुइंग CS ब्रांच, मतलब उसके आगे मुझे दिखाना था कि एंड ही वॉज परसुइंग एंड ही डिड बीटेक फ्रॉम CS ब्रांच करके ऐसा एक फ्यूचर आ जाता है. बिकॉज इट इज यूजुअली सेड कि आपको तीन चीजें दिखानी है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो पास्ट में हमने बता दिया कि कर क्या रहा है, ये ऐसी पोजीशन पर आया क्यों है. प्रेजेंट, ये बैठा क्यों है भाई. फ्यूचर, करने क्या वाला है, आउटकम क्या होगा. आपको एक स्टेप आगे सोचना है कि इसके बाद भी क्या होगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा. थॉट प्रोसेस आपका ये, ठीक है. मैंने, मतलब अभी तो सिंस कोविड मेरी एक एसएसबी थी, मैं जा नहीं पाया बिकॉज मेरा रिपोर्टिंग, मैं स्टेशन पहुंचा बट मेरी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ पाई. सो आई वेंट एंड केम बैक टू होम. सो वो दैट वाज द प्रॉब्लम. तो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैंने कोई एसएसबी नहीं दिया, मतलब 2020 में कोई भी एसएसबी नहीं दी है. सो आज मैंने बस ऐसी रैंडमली उठाई पिक्चर एंड जस्ट इन 4 मिनट 30 सेकेंड्स तक देखा एंड 4 मिनट्स में लिखने लग गया. कुछ नहीं सोचा, नो थॉट, कुछ नहीं, बस लिख दिया. अब जब व्हेन आई वेंट थ्रू इट, आई फाउंड सम मिस्टेक्स. फर्स्ट,
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ चीजें कवर अप नहीं करी है, जैसे कि मैंने चीजें लिखी है यहाँ पर, टेल यू। अभी अभी हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। ठीक है, राकेश 17 एज हो गई। जरूरी नहीं है कि आपको ईयर्स ओल्ड भी लिखना है, आप पर सेव टाइम सेव कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो आप अपने अकॉर्डिंग काम करो। ठीक है, 12th क्लास स्टूडेंट, कौन सी क्लास का स्टूडेंट है भैया, साइंस है कॉमर्स है ये भी नहीं लिखा, यहाँ पर मैं फिसल गया। देन देहरादून उत्तराखंड, ओके दिस इज गुड। आप पूरा डिस्क्रिप्शन दो कि भैया इस स्कॉलर जोन का स्कूल था जो मैंने दिया, बट एक क्लास मिस हो गया, वो नहीं लिखा मैंने। ओके, दैट वाज अ मिस। तो वहां पर वो नहीं कर पाया मैं। ओके, देन फिर हम जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इट वाज मंथ, इट वाज अ फेब्रुअरी मंथ एंड नेक्स्ट मंथ उसके पेपर स्टार्ट होने वाले, दैट वाज अ मंथ ऑफ मार्च। So he discontinued all his social networking IDs and was active on WhatsApp. So basically मैंने करा है, मैंने Facebook अपना बंद कर दिया था। मेरी जो स्कूलिंग थी 12th, वो मैंने 2012 पे करी थी। तो इन दैट ड्यूरेशन मैंने सारी सोशल नेटवर्किंग आईडीज बंद कर दी एंड वाज एक्टिव ऑन व्हाट्सएप। ओके, तो क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत कंसल्ट करने के लिए कभी कोई प्रॉब्लम या मैसेजिंग, व्हाट्सएप तो आज है, क्योंकि आज की हम बात करेंगे तब मैसेजेस थे, टेक्स्ट मैसेज, तो उस चीज में एक्टिव थे हम लोग। सो अभी फिर उसके बाद लिखा मैंने कि ही वाज टेंस्ड एंड इट वाज इंग्लिश पेपर, ठीक है ओके। एंड वी एंड वेयर ही हैव प्रिपेयर्ड वेल मेड नोट्स, ठीक है। अभी मैंने लिखा मेड नोट्स गॉन थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, मगर क्या किया ये तो मैंने लिख दिया कि ये किया, कैसे किया, इट इज इंपॉर्टेंट। कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए, उनकी प्रैक्टिस करी, उनको लिखा। फिर मैंने कंसल्ट किया अपनी फैमिली से, अपनी एल्डर सिस्टर से, यूट्यूब में स्क्रॉल किया कि पिछले पेपर्स में क्या क्या आते थे। तो ये चीजें थोड़ी सी मुझे वेग लगी यहाँ पर, तो इसको इम्प्रूव करना लगा फिर मुझे। ठीक है, फिर अब ये आ गया मैंने कि वो ड्रेसअप क्यों है, क्योंकि 1:30 बजे इसकी रिपोर्टिंग थी, 11 बजे वो तैयार हो गया। अभी वो क्या कर रहा है, ही sat on a chair, revised notes, relaxed and calm down, मतलब calm him down, मतलब अपने आप बैठ के रिलैक्स करने लगे। ठीक है ओके, तो उसने फिर क्या किया, अपना एडमिट कार्ड उठाया, स्टेशनरी लिया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ब्लेसिंग दी पेरेंट्स की एंड वेंट फॉर पेपर। ठीक है, अभी अगर मैं ये चीज नहीं लिखता, मतलब मेरा थॉट है, जैसे मैं तो करता ही हूँ, तो इट इज रियलिस्टिक। हम लोग लेते हैं या तो भगवान को पूछते हैं, या तो पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वी टेक सम ब्लेसिंग्स कि भैया मेरा आज का पेपर अच्छा जाए। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। ओके, सो हम लोगों को ये करना चाहिए, तो इट इज रियलिस्टिक इन नेचर। देन फिर उसके बाद मैंने लिखा कि पेपर वेंट वेल एंड हिज नर्वसनेस टेंशन वाज ओवरकम। अभी क्या था, ये ऐसे बैठने के बाद इसने जब अपना पेपर दिया तो उसकी टेंशन नर्वसनेस सारी खत्म हो गई, एंड ही वेंट थ्रू इट। एंड फिर उसने अपना जो हार्ड वर्क और जो उसकी प्रैक्टिस थी, स्टार्ट वर्क, ही स्कोर्ड परसेंटेज 86%। मेरी इतनी आई थी, मैंने तो उतनी लिखी भैया, मैंने तो 90 99 कोई परसेंटेज नहीं गई, 86 आई थी, 86 ही लिखी मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा कि वहां पर उसने हार्ड वर्क किया। अरे क्या हार्ड वर्क किया, वो जरूरी है। फिर ये मेरा हो गया प्रेजेंट, ये मेरा पूरा प्रेजेंट में आ गया। अब मैंने फ्यूचर को सोचा कि फ्यूचर में क्या करेंगे। सुबह उठता था, है ना, सुबह उठता था, नोट्स बनाता था, पढ़ता था, रिवाइज करता था, तो यही चीज मैंने अपनी डेली रूटीन में डाल दी, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट हो गई थी, मैं हैबिचुअल हो गया था। तो ये मैंने इसको फॉलो रखा फिर, और इससे मेरा एनआईटी का पेपर या नेट का पेपर, एआई ट्रिपल का पेपर, 2012 में तो एआई ट्रिपल था। ठीक है, तो हमने कोई भी पेपर जो हमने दिया, हमने जिसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, हमने वो पेपर क्लियर किया। और पेपर कैसे क्लियर किया कि मैंने वो डेली रूटीन फॉलो किया, मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मतलब ये तो था ना कि मैंने स्कूल स्कूल अपने एग्जाम के लिए पढ़ा और फिर डेली रूटीन छोड़ दिया, नहीं, ये मेरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है कि मैंने उसको कंटिन्यू रखा और पेपर अपना पेपर क्लियर करके मैं एनआईटी में कानपुर में एडमिशन ले लिया इन अ बीटेक ब्रांच। आई एम सॉरी। फिर यहां पर मेरी स्टोरी एंड हो गई, क्योंकि टाइम वैसे तो 4:20 हो चुका था, 20 सेकंड्स ले लिया था मैंने ऊपर। लेने के लिए मैं 10 सेकंड और ले लेता, 30 सेकंड्स और ले लेता, कर देता स्टोरी, बट नहीं,
मैंने कहा यार सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने फिर वहीं पर स्टॉप किया, मैंने कहा लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर आगे इसके बाद ही डिड बीटेक फ्रॉम सीएस ब्रांच, फ्रॉम हिज जो कोर ब्रांच, मतलब उसकी ऐसी हमने दिखा दिया कि उसका परसेप्शन क्या है। मैं तो यहाँ ईसी लिखता, ईसी ब्रांच से किया, क्योंकि मैंने अप्लाई, मैंने मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है बीटेक अपनी। सो हमने उस चीज को वो ही फोरकास्ट करना है। सो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी पता लगेगा। दिस इज माई थीम, ओके, जो मैंने लिखी थी। Theme 2, which is written by one of our recommended candidates. He is medically unfit because of eyesight problem, but ये उसकी स्टोरी है, ठीक है। नाउ इज उसने अभी कोई वो नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ आईसाइट, बट वो अब एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता है एंड ही इज अर्निंग वेल। So ski story, I'll just dictate it. So its story says that Suresh 23 pursuing BTech in branch CS was in last semester of his year, and company was on roll to take candidates. For the same, he took the info that Wipro is coming from the campus placement via mail. For the same, he studied about Wipro as what an organization doing right now. Read about it, current role, inventions. They are planning future ahead through Google and and some some of the seniors. Okay, made quick notes, brush up about his project. Took print out his updated resume, ID card, and consult senior about the question and subject which is being asked most. Gather all the info and with share the relevant details with his friends over the WhatsApp as well. There were thereafter he was well prepared, and on the day of interview he was well groomed and had knowledge, cleared written paper, and after that got GD and interview got selected. And with excitement share it with his family. Post few days he received a mail of joining in Pune. Joined there as a trainee. Post working for 1 year, he worked on his second goal to be an IS officer and started working on that. Okay, so ये मेरे फ्रेंड ने लिखी है, ही इज रिकमेंडेड। अभी सेम थीम हम दोनों ने साथ, उसमें 4 मिनट में लिखी है पूरी, ये पूरी स्टोरी 4 मिनट में लिखी है। ओके, स्टोरी दोनों की थी, परसेप्शन देख रहे हो आप, कितना फर्क है, कितना फर्क है। उसने डिस्क्रिप्टिव डाली, उसने एक्शन प्लान डाला है, ठीक है। यहाँ पर ठीक हो गया कि यहाँ पर वो 23 का बीटेक कर रहा था, और क्या है, सेमेस्टर लास्ट ईयर एंड कंपनीज आ रही थी, जो काफी कॉलेजेस में फॉलो होता है। अब क्या हुआ कि विप्रो आई, विप्रो कंपनी आ रही थी, तो अब उसको पता कहाँ से लगा। अभी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग को विप्रो का पता कहाँ से लगा, उसको पता लगा मेल के थ्रू, है ना, मेल के थ्रू पता लगा। तो ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि भैया उसको किसी से इंफॉर्मेशन, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, कोई भी सोर्स होना चाहिए, तो उसने लिख दिया कि वाया मेल, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जब भी कोई कंपनी आती है तो उसके बारे में पढ़ता है कि क्या करना चाहिए, तो उसने वही किया। ही स्टडीड अबाउट विप्रो एज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन डूइंग राइट नाउ, रेड अबाउट इट, करंट रोल, इन्वेंशंस एंड व्हाट दे आर प्लानिंग फ्यूचर अहेड। सब चीजें पढ़नी होती है ना, कि क्या करने वाले हैं, हम कोई भी टास्क चूज करते हैं तो उसको पहले देखते हैं ना कि पहले क्या कर रही थी, अभी क्या कर रही है, और आगे क्या इन्वेंशन और फ्यूचर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। तो उसने सारी चीजें नोट डाउन कर लिए, कहां से करी, गूगल से। एंड सम सीनियर, जो उसके जो जिनको वो जानता था, विप्रो में काम करते थे, किसी अदर फर्म में काम करते थे, ठीक है। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली और फिर उसने नोट्स बना लिए, क्विक नोट्स बना लिए, ठीक है। फिर ब्रशअप किया, ब्रशअप नॉट ब्रश, वो सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वाला ब्रशअप नहीं। उसने एक वो करा, क्विक ओवरव्यू लिया अबाउट हिज प्रोजेक्ट, जो उसने प्रोजेक्ट किया, माइनर मेजर प्रोजेक्ट। क्योंकि कंपनी के बारे में पूछ के तो उससे पूछेंगे ना, तूने अपने पूरे बीटेक में क्या किया। सो वो बोलेगा सर मैंने ये प्रोजेक्ट किया, XYZ प्रोजेक्ट किया एंड आई हैव दिस मच ऑफ नॉलेज। तो उसने वो भी करा, उसने एक वो ले लिया। फिर उसके बाद ही टुक प्रिंट आउट ऑफ हिज अपडेटेड रिज्यूम, ID कार्ड, कंसल्ट हिज सीनियर अबाउट द क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट विच इज बीइंग आस्क्ड। अभी उसने अपने आप को भी तो ग्रूम करेगा, तो उसने सारे अपनी अपडेटेड रिज्यूम ले लिया। फिर उसने अपनी ID कार्ड, जो भी चीज डॉक्यूमेंटेशन थी सारी अपनी रख दी। अभी इसने एक यहाँ पर मिस क्या किया, सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट भी मिस आउट कर लिया, एंड सेमेस्टर मार्कशीट।
सो उसने सारे यहाँ पर चीज कवर अप करनी थी, वो एक छोटा सा मिस हो गया, दैट इज मैनेजेबल। फिर उसके बाद उसने कंसल्ट किया सीनियर से कि भैया क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस चीज को उसने अपने हाथ में रखा और फिर ही गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड शेयर द रिलेवेंट विद फ्रेंड्स। अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक बंदा होता है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी और उसने अपने पास रखी, देन ही बीइंग सेल्फिश इन दैट नेचर। उसको क्या करना चाहिए था, उसको शेयर करनी चाहिए थी फोटोग्राफ, वो चीज सारी इंफॉर्मेशन, सो दैट उसका भी बेनिफिट हो और उसके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो। तो यहाँ मुझे बहुत उसकी इंटरेस्टिंग चीज लगी, उसने लिखा दैट ही शेयर्ड विथ हिज अदर फ्रेंड्स एज वेल। वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने इंटरव्यू हुआ उसका, उसका रिटर्न पेपर था वो क्लियर किया, उसका इंटरव्यू हुआ। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू उसने अपने आप को ग्रूम किया, अच्छे से नॉलेज थी, तो कॉन्फिडेंट था। ठीक है, सबसे पहले उसका रिटर्न पेपर क्लियर हुआ, उसके बाद उसका जीडी हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ एंड गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, एक ही दिन में पूरा काम हो जाता है, जो कॉलेज में होता ही है, तो एक ही दिन में सारा काम हो गया। एंड विथ एक्साइटमेंट, ये एक यूनिक वर्ड आ गया, मतलब एंड विथ एक्साइटमेंट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि दिस इज बीइंग वेरी नेचुरल। एंड विथ एक्साइटमेंट ही कॉल्ड हिज फैमिली एंड उसने शेयर किया थॉट कि आई गॉट सिलेक्टेड। और फिर उसके बाद पोस्ट फ्यू डेज, मतलब थोड़े दिनों के बाद उसको एक मेल मिलती है दैट यू हैव टू ज्वाइन एज ए ट्रेनी इन पुणे। ठीक है, उसके बाद उसने फर्स्ट, ये हो गया उसका प्रेजेंट। यहाँ पर इसने एक्साइटमेंट में फैमिली के साथ शेयर किया, ये उसका पूरा हो गया, रोल प्ले खत्म, प्रेजेंट का टास्क उसका खत्म। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आएगा, उसने उसने मेल का वेट किया, पुणे उसकी ज्वाइनिंग थी, उसने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया फॉर 1 ईयर, ही बीइंग स्टैग्नेंट। और उसके बाद जैसे उसको सेकेंड ईयर लगा, उसने उसका सेकेंड गोल जो था टू बी एन आईएएस ऑफिसर, उसने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली। कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एन डिफेंस एस्पिरेंट या वो दूसरी कंपनी में स्विच करने का है, कुछ भी। सेकेंड गोल जो आपका, आपने बोला कि भैया मैंने, अब ये थोड़ी ना होता है कि मैंने विप्रो ज्वाइन कर लिया, XYZ कंपनी हुआ, वहीं पर बैठे रहूंगा सरकारी नौकरी, नहीं यार, दिस इज नॉट लाइफ। तो आपको सेकेंड गोल गोल को प्लान आउट करना है। सो ये जिस बंदे ने लिखी है, ही इज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट एंड इट इज डैम गुड जो उसने लिखी है। ठीक है, एंड फिर मैंने उससे पूछा कि भाई मेरी मेरी में क्या मिस्टेक्स है, उसने मुझे एनालाइज करके बताया कि ये मिस्टेक है, वो मैं पहले एनालाइज कर चुका था। मैंने कहा हाँ, मुझे लग रहा था कि मेरी मिस्टेक्स हुई है। फिर सम टिप्स विच आई फील जो हम लोग को याद रखनी चाहिए वाइल यू नो वाइल डूइंग दिस टेस्ट, आई एम सॉरी, टिप्स टू राइट। सो रादर देन राइटिंग व्हाट टू डू, राइट हाउ टू डू। मतलब हम लिख देते ना, हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे भैया उसमें ये बताओ ना तुम करोगे कैसे। हम लिखते हैं कि हम उस बच्चे को, एक बच्चा है उसकी चोट लग गई है, हम उसको पट्टी करेंगे और उसको खून रोक देंगे, अरे रोकोगे कैसे, हम क्या करेंगे, हम हैंकरचीफ निकालेंगे या बैंडेज निकालेंगे, उसके पट्टी को, उसको रोल अप करेंगे, उसकी ब्लीडिंग रोक देंगे, ये करेंगे। सो दिस इज हाउ टू डू, नॉट व्हाट टू डू। व्हाट टू डू तो सब करते हैं, हाउ टू डू बताओ। एंड बी स्पेसिफिक ऑन एक्शन प्लान, अपने एक्शन प्लान को स्पेसिफिक रखो। सोचो, अगर आप उस सिचुएशन पे होते तो आप क्या करते, आप सोचो, कभी ना कभी तो इस पोजीशन पे बैठे होंगे, तो क्या क्या सोच रहे थे उस टाइम आप उसके थॉट को अपने दिमाग में डाल के सोच के लिखो। और फ्यूचर प्लान इज प्रिटी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इट गोना बी। हम सब लिख देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फ्यूचर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपकी परसेप्शन बताती है, आपकी पर्सपेक्टिव बताती है, आप कितना दूर तक सोच रहे हो, आप कितने रियल, आप अपने आप को कितने सीरियस हो लेके, तो वो इंपॉर्टेंट है। फिर मेक अ कॉमन स्टोरी विद ब्राइट पर्सपेक्टिव, इसका मतलब है कि आपकी, अगर कोई भी स्टोरी कॉमन होती है, मैं कोई यूनिक उठा के उसमें एक गरीब का बच्चा ले आऊं और फिर वो अमीर बन जाए, फिर होता है, रियलिस्टिक में भी होता है, बट उसने उसमें किया क्या, उस गरीब के बच्चे ने अमीर बना कैसे, वो रियलिस्टिक है, वो उसका ब्राइट पर्सपेक्टिव है, तो वो लिखना है। एक छोटी स्टोरी भी बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप उसमें कंटेंट और उसकी रियलिस्टिक अप्रोच डालोगे। सेकंड पॉइंट इज द रियलिस्टिक अप्रोच।
अब ऐसा नहीं होता कि आपने बस पेपर दिया, रिटर्न पेपर क्लियर क्लियर हो गया, नहीं। इट हैज टू बी अ प्रोसेस, इट हैज टू बी अ हार्ड वर्क। तो जैसे उस रिकमेंडेड कैंडिडेट ने बताया कि उसने क्या किया, उसने पढ़ा, गूगल किया, उसने सब चीजें अपने सीनियर से पूछी, अपने एल्डर से पूछी, उसने सब कुछ एनालिसिस करके उसने नोट्स बनाए। तो दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच। मैं लिख दूं कि भैया मैंने बस पढ़ा और मैं सिलेक्ट हो गया, कैसे सिलेक्ट हो गया? दैट इज नॉट पॉसिबल। उसने कोई शेड्यूल बनाया होगा, उसने कोई अप्रोच रखी होगी। इट हैज टू बी रियलिस्टिक, वो इंपॉर्टेंट है। फिर कम विद अ कॉमन प्लान बट डिफरेंट सॉल्यूशन, बट विद डिफरेंट सॉल्यूशन। हमने काफी चीजें तो डाली है, ठीक है। अभी हम सोचते हैं कि हम यूनिक कैसे बनाएं। भैया यूनिक कुछ नहीं होता, यूनिक आपको खुद बनाना पड़ता है। कैसे यूनिक बनाओगे? आपकी एक कॉमन स्टोरी ना, उसमें अगर आप यू को यूनिकनेस डालना है, तो उसमें चीजें डालो, उसकी सॉल्यूशन, उसकी एक्शन प्लान डालो, तो वो अपने आप ही यूनिक हो जाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। वो चीज को यूनिक बनाती है, तो आप वो करो। और जब आपने ये चीजें कर ली, तो यू हैव अ गुड स्टोरी। So guys, these are some of the tips which I feel which is which is important to write a story, a tag story, a PP story. So ये मैंने अभी कुल एक स्टोरी पिकअप करी और उसमें दो थीम बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं दो स्टोरी लेके आऊंगा, उसमें अलग अलग बच्चों से मतलब अलग अलग कैंडिडेट से कंसल्ट करूंगा, और फिर उसमें दो दो या तीन तीन थीम्स डालूंगा, सो दैट हम लोगों को पता लग पाए कि मैं कहां पर गलत हूं और आप लोग कहां पर गलत हो। आप मुझे हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या होगा, आप सिलेक्ट होंगे या मैं सिलेक्ट होऊंगा, एटलीस्ट समबडी इज गेटिंग रिकमेंडेड। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो हम एक दूसरे को एज अ टीम वर्क करना, हेल्प करना एंड रिकमेंड होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यही चीज आगे हमें हेल्प करेगी। अगर आप इंटरेक्ट करोगे, हेल्प विद योर कमेंट्स, लाइक, इट्स अप टू यू, लाइक करना है करो, नहीं करना मत करो, इट्स ओके, बट हेल्प विद योर कमेंट्स, सो दैट मैं उसको उसको गो थ्रू कर पाऊं। सो मैं भी सोचूं यार, हाँ दिस कैन बी चेंज, दिस कैन बी रिटर्न। तो ये चीजें मैं भी सोचूंगा, तो मैं भी पुट अप करूंगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड विद द नेक्स्ट video I'll be मैं जल्दी लेकर आऊंगा in next 2-3 days, then I'll be putting the second story, एंड इन दैट थीम हम एक ही स्टोरी पे तीन चार थीम रखेंगे, सो दैट हमें पर्सपेक्टिव, और तीन चार बंदों से पूछूंगा, उनके रियलिस्ट, उनके अप्रोचेस, उनके रिटर्न में लेकर आऊंगा, एंड देन वी कैन कम इट अक्रॉस एंड वी कैन डिस्कस। और नेक्स्ट टाइम में आई होप दैट कि वो लोग भी मेरे साथ आए एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस एज वेल एज कि वो लोग की क्या एनालिसिस है मेरी स्टोरी और अपनी स्टोरी के ऊपर, so that it can help both of us, all of us, not both of us but all of us. So thank you so much guys, and have a good day. Stay fit, stay alive, stay healthy. Thank you.